Hello everyone, good morning. I welcome you again in the topic practical, no, not practical geometry, sorry, data handling. So in this data handling today we are going to work on pie chart. Yesterday we have solved some questions based on the pie chart, but here today we are actually going to go deep into the topic. It's a bit difficult concept we are going to understand. Exactly opposite we are going to work on. Yesterday you found angle and you construct the pie chart. Today using angle I am going to find out the value. Okay, so exactly opposite concept we are going to deal with. So before we start the exercise I would like to teach you this simple concept which is right now in front of you. But can you tell me before we start the question, how did you yesterday find the angle? The central angle I can say. So central angle का एक typical formula I'll write here. Central angle is equals to the value of a particular maybe city or maybe a person, maybe particular observation, whatever it is. So here in this case ABC city का value जो भी होता है, the population in this question, in this example, upon total into 360. So this is the way how we found the central angle. You remember this? What we have done, let us understand again, isn't it? We found central angle by using the value, given value, known value upon total into 360, right? In all such questions we are going to use the only one formula and we are going to get the answer. यही formula हम लोग use करने वाले. See, my method is I don't normally ask children to remember various formulae. ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, इसके लिए ये करो, उसके लिए वो फॉर्मूला करो, उसके लिए वो फॉर्मूला करो, बिल्कुल नहीं. वी आर गोइंग टू यूज ओनली एंड ओनली वन formula and we will get all the values, all other values. Okay, so we'll just use the same formula to get the answer of the question. ठीक है, करना क्या है देखते हैं अभी. सबसे पहले करना क्या है, ABCD आर द सिटीज एंड इट्स पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट. तो यहाँ पे पाई चार्ट पे हमें पॉपुलेशन के प्रेजेंटेशन दिया हुआ है. उसके एंगल्स है गिवन. कुड यू चेक द एंगल्स? ये है उसके एंगल्स है गिवन, क्लियरली इट इज मेंशन. All the angles are given. Now using these angles, so I have to find out the total and all other things. So चलो देखते हैं. If A has population 30 lakh, find the total population. कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन तो हमारे पास है. A का सेंट्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो ये रहा 60, इधर सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी दी है? 30 लाख. तो ये रहा 30 लाख. तो मैं 30 लाख भी लिख सकता हूँ, बट आई एम गोइंग टू राइट 30. दैट्स इट. अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितना है पता नहीं, तो टोटल में यहाँ से टोटल लिखता हूँ, इनटू क्या हो गया 360. आई मे से द टोटल पॉपुलेशन एज x, so I can write it as x as well if I want. Now this is nothing but the equation. Yes or no? It's a simple equation which can give me the value of x. तो x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया because it is division, it goes as a multiplication. And 60 को इधर भेज दिया, it is up, it will come down, is equals to 30 upon 60 into 360. तो 0 0 get cancel, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16 and 0, it is 180 lakh. Because it is a total population, therefore it is 180 lakh. Clear? I hope you are understanding. So what is the total population of all the four cities here? Is nothing but 180 lakh. Okay, so very simple. So I'll just erase it and I'll just help you in finding the other one. So remember now 180 lakh is the total population of the city, all the four cities, 180 lakh total, right? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको. देखो देखते हैं अभी. फाइंड पॉपुलेशन ऑफ बी सिटी. तो बी सिटी के बारे में क्या पता है हमें? 130 है सेंट्रल एंगल, तो यहाँ लिखा 130. वैल्यू, बी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है ना. बी का पॉपुलेशन मुझे फाइंड करना है, मतलब बी का वैल्यू फाइंड करना है. दो चीज़ें होती है, एक तो बी का एंगल एंड एक बी की वैल्यू. ओके, तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पॉपुलेशन फाइंड करना है. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वाई कंसिडर करता हूँ. बी का पॉपुलेशन जो है वाई कंसिडर करता हूँ, या फिर आई कैन जस्ट से बी एज वेल, राइट? अपॉन टोटल कितना है? 180 लाख, राइट है नो, इनटू 360. तो मुझे बी फाइंड करना है, बी तो ऑलरेडी अप है, तो ये जो चीज़ है ये मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर इसको ऐसे कैंसिल कर दिया. 18 1 जा 18, 2 जा 36, तो 2 कैन बी शिफ्टेड डाउन देयर. तो 130 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी. ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे. यू रिमेंबर इक्वेशन सॉल्व? इट्स सिंपल थिंग, सिंपल एज दैट. तो 2 1 जा 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10. तो बी पॉपुलेशन इज 65, मतलब 65 नहीं 65 लाख.
गेटिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. चलो और एक जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करते हैं. पॉपुलेशन ऑफ सी, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ? चलो बिफोर आई सॉल्व यू कैन ट्राई. सी के लिए सेंट्रल एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री. वैल्यू कितनी है सी की वो मुझे फाइंड करनी है, मतलब सी का पॉपुलेशन मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं सी लिख रहा हूँ यहाँ पे. टोटल कितना है? 180 लाख इंटू 360. तो 0 0 गेट कैंसिल, 18 1 18 2 2 यहाँ पे आ गया, तो सी इज इक्वल टू 15. तो क्या होगा? 15 लाख. तो what is the population of CCT is 15 lakh. I just hope you are understanding कि how we have to solve using the same formula that what we have used yesterday. Okay, so let us continue. Let's understand the very first question. चलो देखते हैं the first question क्या बोल रहा है, देखते हैं. Try to understand it. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following questions. If 20 people liked classical music, तो ये रहा वो classical music का area, which is given it is 10% and here it is 20. मतलब 10% is 20. So instead of giving central angle, try to understand, instead of giving central angle, it is given in percentage. तो देखो basic idea remains same. I repeat again, basic idea remains same. तो चलो देखते हैं. सेंट्रल एंगल या फिर परसेंटेज इज इक्वल्स टू वैल्यू अपॉन टोटल इनटू, as it was central angle, the total angles were 360. The total addition of the angle was 360. As it is a percentage, the total is 100. So instead of multiplying by 360, here I am going to multiply by 100. So basically for percentage, you remember, you have to understand, keep in mind, the same value instead of central angle, it is percentage. Percentage is nothing but the value upon total into 100, right? The value of that particular whatever cities or whatever maybe the classical music the group is, right? Now let's continue. So I hope you understand the formula, the change in the formula. देखो, central angle is equals to value upon total into 360. ये था मेरा सेंट्रल एंगल. अभी सेंट्रल एंगल की जगह पे क्या आ गया? परसेंटेज आ गया. बाकी ये तो सेम ही है. एंड 360 की जगह पे क्या आ गया? 100 आ गया, बिकॉज टोटल इज 100. क्लियर? सो रिमेंबर दिस. सिंपल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, ये रहने दो वैसे ही. चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Okay, now what is given us? Let us see. If 20 people, though this is my value, if 20 people like classical music का परसेंटेज कितना है? 10%. तो ये रहा 10%. वैल्यू, क्लासिकल म्यूजिक की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने लोग देखते हैं या फिर सुनते हैं? इट इज़ 20. टोटल मुझे पता है, नहीं पता तो उसको x कंसिडर करता हूँ, या फिर इफ़ आई वांट आई कैन कंसिडर दैट एज स्मॉल t एज वेल, जैसे ऐसे t कंसिडर कर सकता हूँ, इनटू 100. दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू गेट टी वैल्यू. कैसे मिलेगा टी वैल्यू? टी नीचे है तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, 10 को नीचे भेजते हैं. सो व्हाट डू आई गेट हियर? सो टी इज इक्वल्स टू 20 इंटू 100 बाय 10. 0 0 गेट कैंसिल, इट इज़ 200. सो हाउ मच इज टोटल पीपल? इट इज़ 200 पीपल आर देयर टोटल इन ऑल विच वर सर्वेड. तो ये आ गया समझ में? क्लियर? फॉर्मूला को वैसे ही करो, मॉडरेट करना है बस, और कुछ नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which type of music is liked by the maximum number of people? Of course, light music, which is 40%. So it's very clear. Light music is liked by maximum number of people. If a cassette company were to make 1,000 CDs, how many each type would they make? How many each type? मतलब ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ऐसे पूछा है. अगर 1,000 कैसेट्स है तो इन द सेम प्रोपोर्शन दे शुड वर्क ऑन. दैट मीन्स क्लासिकल. अभी ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. देखो, क्लासिकल दे आर सपोज टू, इट इज सपोज टू बी 10% ऑफ 1,000, राइट? फोक, it is 30% of 1,000, and then similarly light, it is 40% of 1,000. That's it. अभी ये ऑफ का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करता है? कुछ नहीं. 100%, 10% का मतलब क्या होता है? 10/100.
into 1000. You can find the answer. 30 upon 100 into 1000. That's it. You can find the answer. Here is 40 upon 100 into 1000. Finished. You will get the required result. Isn't it? I hope you are understanding. So it's all about knowing the fraction and just getting the answer for the cassettes, nothing else. ओके क्लियर, आइडिया क्लियर. थोड़ा सा वियर्ड टाइप क्वेश्चंस है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, यू हैव टू ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ दिस. यू कैन ईजिली ड्रॉ द पाई चार्ट. सो आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट. कुछ नहीं करना, आपको टेबल बनाना है, सेंट्रल एंगल करना है. इसका टोटल कितना आता है देखते हैं. 0, 5 + 2 7 एंड नो 5 + 2 + 6 360 आता है टोटल. ओके, तो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं. 90 upon total, that is 360 into 360. Okay, 120 upon total into 360 and 150 upon total into 360. So this would be my central angle. So let me tell you, no difference between central angle and the given values. 90, 120 and 150 आप ड्रॉ करोगे सर्कल में, पाई चार्ट विल बी रेडी. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड. Third question you have already done yesterday, so I'm not taking that right now. तो let's go for directly fourth question. So again यहाँ पे देखो सेंट्रल एंगल दिया है and I'm expected to find the value. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, you know that I will be writing the formula. सबसे पहले मैं सेंट्रल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला लिखता हूँ. सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360. एंगल है इसलिए 360, परसेंटेज होता तो 100 लिखता मैं, राइट. तो ये फॉर्मूला. लेट्स अंडरस्टैंड. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. अभी क्या पता कि कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स मिले, लेकिन हाँ, व्हाट आई एम गिवन, लेट अस सी. द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वेर 540. ओके, सो टोटल इज 540. यहाँ पे देख लो, टोटल इज 540. सेंट्रल एंगल तो मुझे पता है. कैन आई फाइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन आई फाइंड ऑल द एंगल्स, राइट? कैन आई फाइंड इट? Let us see. Let's see whether I can find all the angles or no. Okay, let's understand that. See, again I repeat, 540 is total and I am supposed to find out 105 कौन से सब्जेक्ट में उसको मिलेगा. तो instead what I thought, why can't I find out all the angles, all the marks of the subjects, all the marks of the subject. तो सबसे पहले हर एक के मार्क मैं फाइंड करता हूँ. ओके, चलो पहले मैथ्स के देखते हैं. फॉर मैथमेटिक्स देखते हैं. मैथ्स के लिए सेंट्रल एंगल फॉर्मूला वही है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू वैल्यू, और यहाँ पे मार्क्स लिख सकता हूँ मैं, मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360. एंगल कितना है मैथ्स के लिए, 90 डिग्री. मार्क्स कितने मिले उसको और कितने मिलेंगे उसको, वो तो पता नहीं, मुझे फाइंड करना है. टोटल कितना है, टोटल मार्क्स है 540 into of course 360. So 0 get cancel, right? 12 3s are 12 से है क्या डिविजिबल, नहीं है. तो 9 4s are and 9 6s are, again 2 2s are 2 3s are, राइट. तो इट्स वेरी क्लियर. तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3. ठीक है, ये 2 है, ये 3 है. अभी मैं 2 and 3 इधर शिफ्ट करता हूँ तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, किसके, मैथ्स के मिल जाएंगे. तो 90 into 3 upon 2 इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ मैथ्स, राइट. सो 2 1s are 2 45s are and 45 into 3 5 3s are 15, 1 carry and 4 3s are 12 plus 1 13. तो 135 मिले उसको मैथ्स में, राइट. वैसे ही कैन यू फाइंड आउट ऑल द एंगल्स अकॉर्डिंगली. ऑल द एंगल्स के मार्क्स फाइंड कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं ना. मैथ्स के लिए तो मैंने निकाला, आप लोग अदर एंगल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं. तो इजंट इट, आउट ऑफ ऑल दिस वन कैन बी 105 मार्क्स. यू हैव टू जस्ट टेल द एंगल, टेल द सब्जेक्ट, राइट. हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी. तो मैथ्स के तो मैंने मार्क्स निकाल दिए, हिंदी के निकालते हैं. हिंदी के लिए, हिंदी के मार्क्स कैसे निकालते हैं, चलो कम ऑन लेट्स वर्क ऑन इट. फॉर्मूला वही है, सेंट्रल एंगल. हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना है,
हिंदी 70 इज इक्वल टू हिंदी के मार्क्स अपॉन टोटल 540 इंटू 360। ये तो 2 और ये 3 हो जाएगा तो पता ही है, ये ऊपर चला जाएगा। 70 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ हिंदी, बराबर है ना। यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज़ किया बस, और कुछ नहीं। सो 2 1 ज़ा 2 35 ज़ा 5 3 ज़ा 15 1 कैरी एंड 3 3 ज़ा 9 + 1 105 आ गया। देखो यही है, हिंदी वाला ही है वो सब्जेक्ट जिसको 105 मार्क्स मिले उसको। कितने ज़्यादा मार्क्स मिले? अभी ये है मैथ्स के मार्क्स, ये है हिंदी के मार्क्स। कितने ज़्यादा मार्क्स मिले? 30 मार्क्स ज़्यादा। सो वेरी सिंपल, ओके राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Examine whether the sum of the marks obtained in social studies or social science and mathematics is more than science and Hindi. इसलिए मैंने बोला था कि सारे मार्क्स फाइंड कर दो, you will understand the questions, okay. Each angle के पकड़ के सारे मार्क्स फाइंड करो एंड आंसर द क्वेश्चन, दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डील। करेक्ट हो गया। आई दिस वॉज द लास्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे हमें क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए ये पाई चार्ट बनाना, तो मैं बस आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ओके। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यू कैन ऑल डू इट ऑल बाई योरसेल्फ। बस मैं सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट लैंग्वेज, देन वी हैव स्टूडेंट्स एंड देन we need to find out the central angle. सेंट्रल एंगल, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड ऑफ कोर्स टोटल। स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 फॉर हिंदी, 12 9 7 4 एंड द टोटल इज 72। चलो देखते हैं टोटल सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो 40 अपॉन 72 इंटू 360 कितना आता है इसका आंसर देखते हैं। देखो 40 अपॉन 72 इंटू 360 द एंगल इज 200 डिग्री, ओके। मैं डायरेक्टली पर्पजली कर रहा हूँ, यू कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। 72 इंटू 360 ये कितना आता है देखते हैं। दिस कम्स 60 डिग्री। नेक्स्ट देन इज 9 अपॉन 72 इंटू 360 ये कितना आता है देखते हैं। 45 डिग्री। 7 अपॉन 72 इंटू 360 7 ही है ना उधर, ये आता है 35 एंड 4 अपॉन 72 इंटू 360 ये आता है 20 डिग्री, right? So you can easily draw this angle except 200 degree, right? Now how will you draw 200 degree? क्योंकि 200 आपके प्रोटेक्टर में ही 200 डिग्री नहीं होगा, isn't it? तो ये कैसे ड्रॉ करोगे? तो ये सिंपल वे है, आपको मैं बताता हूँ। 200 इज 180 प्लस 20। तो आपको करना क्या है, ये प्रोटेक्टर रखो, पहले 180 डिग्री ड्रॉ करो, उसके आगे 20 ड्रॉ करो, ओके, एंड देन दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 200 डिग्री, ओके। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन गो फॉर 200 डिग्री। बस उसके बाद इसको इरेज करना मत भूलना, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 200 डिग्री का सेक्टर। क्लियर? गेटिंग इट? होप यू अंडरस्टूड इट। So we'll stop our work here. Tomorrow I'll give you some extra questions because I want you to understand the previous part, the calculation part very properly, this calculation part very properly. तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बस आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू टुमारो।